Okay. Okay, so this is the second lecture. I'll try to speak English and Hindi for the sake of larger audience. But you can speak any language you want. Okay. So, so this is the second lecture, and this will be about probability theorems. Second. One, 2000. Okay. So in the first lecture, we have calculated how to we have seen how to calculate the probabilities of occurring different events using basic definitions, right? So we had discussed two definitions. One is using the uniform sample space, and the other one is using non-uniform sample space. But today, let me begin with an example where we will see that constructing sample space is not always feasible, because when the size of the sample space is large, it's not possible. It's crazy, right? You have to write down all these numbers and count them and then calculate the probability. It's difficult. इससे अच्छा है कि हम लोग formula use करें, some theorem use करें, and then we calculate the probabilities. So we'll start with an example. Okay. So the first example is that suppose there is a box, and a box that contains uh, 5 black balls and 10 okay. So in total there are like 15 balls. And so what is the probability? Now this is easy. What is the probability that you randomly pick one ball? कोई भी एक ball randomly उठाने का probability क्या होगा? 1/50. तो ये तो आसान है. This is easy. But अगर मैं ये पूछूं कि what is the probability that जो हम लोग draw करेंगे, 2 बार draw करेंगे, okay, we'll draw twice. And what's the probability that the first time you draw a white ball and the second time you draw a black ball? 1/2 into 10/15 plus 1/2 into 5/15. 14. Sorry, 14. Why 1/2? Because there is two types of ball. One is black and the other is white. So now question is, okay, so let me write the question first. So the question is, what is the probability of drawing a white ball first a white ball and second one is black, and then a black ball. Okay. So how to answer this question? So basically, I told you, if I asked you what is the probability of drawing the white ball first, what is that probability would be? 10/15. 10/15, because we have 15 balls, out of them 10 are white. So drawing
white ball first has probability 10 by 15, and then I'm saying that you don't replace the ball. So white ball is still in your hand, and then what is the probability that you pick up black one? 5 by 14, because you are not एक equal. less एक कम होगा. So then 5 by 14. drawing a black ball second time has a probability 5 by 14. अब थ्योरम ये होगा कि थ्योरम हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट व्हाइट बॉल एंड देन ब्लैक बॉल दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी. ओके, ये तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हो गया ना कि पहले मैं व्हाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी. ये दो जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है. पहले तुमने एक को पिक किया फिर उसको पिक किया. मेरा क्वेश्चन अब ये होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों का, मतलब पहले व्हाइट फिर ब्लैक, दिस एंड दिस एक साथ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका आंसर होगा 10 by 15 टाइम्स 5 by 5. ये हम लोग प्रूफ करेंगे. okay? ये एक थ्योरम है जो हम लोग आज प्रूफ करेंगे. सो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. तो अब देखो, तो मैंने पहले आंसर बोल दिया, बट हम लोग इसको देखेंगे कैसे करते हैं. बट नाउ सी दैट if I asked you to solve this question or have this answer using the sample space, तो हमें देखो बहुत लार्ज होता सैंपल स्पेस. क्यों, कैसे बनाते इसका सैंपल स्पेस? 1 by 15, 1 by 15, 1 by 17 times. हाँ, तो नहीं, बट उसके पहले हमें क्या करना है, सिंपलिसिटी. बॉल मान लो कि जितना भी बॉल है ना उसके ऊपर नंबर है. सपोज इमेजिन करके बॉल्स के ऊपर हम लोग 1 2 3 4 5 6 करके 15 स्टिकर लगा दिया एंड विथ नंबर. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दिस एंड दिस दो बॉल मैं पिक कर रहा हूँ, एक बॉल पिक कर रहा हूँ फिर दूसरा बॉल पिक कर रहा हूँ, राइट? आई एम पिकिंग वन बॉल एंड देन पिकिंग अनदर बॉल. तो क्या क्या पिक हो सकता है? मान लो पहले आई पिक 3 एंड देन आई पिक 5. तो ये एक सैंपल स्पेस हो गया, एक सैंपल पॉइंट हो गया, है ना? सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम सैंपल पॉइंट्स. सो दिस इज वन सैंपल पॉइंट. और क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है, 6 15 हो सकता है. तो कितना होगा? 2 to 5 तो हम लोग ऐसा 15 रो बना सकते हैं या 15 कॉलम बना सकते हैं, और हर के लिए 15 14 कॉलम. कितना रो कितना होगा? नहीं, मैं 15 के बाद क्योंकि मैं जब एक को पिक कर रहा हूँ, दूसरा पिक करने का मेरा ऑप्शन कितना? फर्स्ट पिक के लिए मेरा कितना? 15 मेरा चॉइसेस है. लेकिन जब मैं फर्स्ट पिक कर चुका हूँ 14 है, फिर 13. राइट? नहीं, फिर 13 नहीं, फिर मैं दोनों को फिर रख दिया, फिर मैं 2 पिक करूंगा. ऐसे मैं सैंपल स्पेस तो 29 तो ये हो जाएगा. करेक्ट. तो मान लो मैंने पहले, तो क्या होगा? 1 सैंपल पॉइंट क्या होगा? 1 हो सकता है. हाँ. और फिर 1 तो नहीं, फिर से तो 1 नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं. तो क्या हो सकता है? 1 2 1,2 ये एक सैंपल पॉइंट होगा. दूसरा क्या हो सकता है? 1,3 हो सकता है. सर अब तो 50 1,50. करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे जो 1 है एंड दिस 2, this basically represents the number. No, this is basically the numbers on the balls. ठीक है. और फिर क्या हो सकता है? 2,1 2,1 हो सकता है. 2,2. वैसे ही बनाया सर जैसे डाइस का सैंपल हाँ स्पेस सर, है. जैसे डाइस का बना था. फिर 2,2 2,3 up to 15. लेकिन अब वो 2,14 तक चलेगा.
करेक्ट। तो यहाँ पे कितना, बताओ आप यहाँ पे कितना वो हो रहा है? इसमें वहाँ पे 15 कॉलम होगा और 14 रो होगा, क्योंकि एक ही बॉल, जैसे कि नहीं, उसमें एक डिफरेंस है। इसमें दो डाइस जब कर रहा था उसमें 1,1 हो सकता है, इसमें सर लेकिन यहाँ पे इसमें 1 1 इसमें 2,2 होगा नहीं। 1 नहीं हो सकता। सर वैसे ही सर, लेकिन अगर 2,1 फिर 2,3 2,4 नहीं, 2,2 नहीं हो सकता। वही तो सर 2,3 2,3 होगा, 4 होगा। हाँ, टोटल Up to 15, up to 15। हाँ 15 तक होगा। वैसे 3,1 3,4 तो यहाँ पे कितना होगा, काउंट करो। 14 14 कॉलम होगा, 14 कॉलम 15 रोज। तो टोटल सैंपल पॉइंट कितना होगा? 15 टाइम्स, 14 देख रहे हो कितना ज्यादा साइज, कितना सैंपल्स बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में अगर प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड, और मान लो मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स और ज्यादा है 50, तब मैं तुम्हें बोला था तुम्हें इतना सारा सैंपल्स पॉइंट लिखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, उसमें से फेवरेबल इवेंट्स करना पड़ेगा, फिर तुम्हें यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम व्हिच इज डिफिकल्ट, है ना। और तो इसका मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब ये कि सैंपल पॉइंट्स और सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्टिंग डज नॉट ऑलवेज वर्क। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो मेथड है इसको हम लोग बाईपास करेंगे यूजिंग थ्योरी, ठीक है। ये क्लियर है? छोटा सैंपल्स भी थ्योरम के लिए मुझे सैंपल, मुझे फार्मूला, मैं फार्मूला यूज ये समझ में आया ना। इसमें कितना कलम होगा, देखो 14 नहीं 14 होगा, क्योंकि सर एक वाले बोल नहीं सकते, 1 2 एक वाला 3, क्योंकि ये 1 होगा, 1 नहीं हो हो सकता। सकता जो वो चीज ऑलरेडी ले चुके हैं आप। 14 कॉलम होगा 14 और लेकिन 15 रो होगा, ठीक है। यानी सर लास्ट पॉइंट होगा 15,14। यस एग्जैक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे अब, पहला जो दो सवाल प्रॉब्लम है ना वो स्पेस के ऊपर ही है। हाँ, वो सैंपल स्पेस के अंदर जो स्पेस होता है। so let me write down the theorem. ये डॉट नहीं कॉमन डॉट तो अभी आए। So the general theorem. So let me state the theorem first. So basically we are interested into successive events. जिसको हम लोग we call it A and B. Successive events, okay? Successive events मतलब A and B होने का probability है, okay? तो हम लोग ये, so let PA be the probability that event A will happen. तो A इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? PA. Similarly, बी होने का बी exactly. Similarly, PB हम लोग बोलते हैं with the probability that event बी भी है। B will happen. And PAB, okay? यानी probability of B when event A is happened. Exactly. So this is the probability B by E A by B that B will will happen happen when event A is happened. when we know When we know that event A is happened. that event A has happened. Okay.
ये समझ आया पी ए बी क्या है? It will happen with the यानी तुम्हारा पीरियड ए का ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद तुम उसमें ए हो चुका है, फिर तुम उसके बाद बी का क्या? मतलब जैसे कि अगर मैं पिछले एग्जांपल से बताऊंगा कि तुमने व्हाइट बॉल ऑलरेडी निकाल पिक कर चुका हो, निकालने के बाद अब कौन सा अब ब्लैक बॉल उठाने का मतलब पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, ये बस। तो अगर ऐसा हुआ देन पी ए बी मतलब P of it. this is basically probability that the compound given A and B, okay, will occur is given by this is the theorem P A B this is the तो ये हम लोग को प्रूव करना है, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक डायग्राम यूज करेंगे। So we use this reference, again sample space reference, but only diagrammatic representation. We use only the diagrammatic or schematic representation to understand this theory. Okay, suppose this is the कितना लिखिए तुम लोग? ऐसा हम लोग इसको प्रूव करेंगे। Suppose this is our sample space, and suppose this sample space contains total number of n points. Okay, although this is finite, but suppose the total number of points in this sample space is capital N. And suppose this is the sample space for event A, and suppose this is the sample space of event B. Okay, this is a kind of Venn diagram, right? Venn diagram, and you can see some common region. And so common region represent basically the probability of happening A and B. Okay. So this is basically A B. This is A and B. Okay. So now, what you can write on this diagram? What we can write? What can we write on this diagram? So, what is P of AB? P of AB. Sir, Okay, let me also write this. So, P of A plus P of P number of minus P of A. plus
number of sample points in region A is NA. Maybe N not N A. Within the parentheses. Number of sample points B is N B, and for AB is N. Okay. And so what is PAB? Bolo, what is PAB? If the number of sample points in this overlapping region is NAB, then what is PAB? Sir, NAB minus NA. NAB Minus NA. A plus NB minus NAB. NAB by NAB is the number of points in the overlapping region. इसका मतलब क्या है कि NAB number of favorable points, अच्छे से सुनो पहले. NAB is the number of favorable points to the number of points favorable to the events A and B, right? So what is the probability of PAB? This is uniform sample space. What is the probability formula? NAB by NA plus NB. NA plus NB. why NA plus NB? Total number of sample. What is the NAB by NA plus N only. टोटल तो पता है Because N is the total number of sample points, and this is the uniform sample space. I am considering a uniform sample space. Okay. Why I am considering uniform sample space? Because I am trying to prove this statement. This is for the sake of my simple. So, because uniform sample space, the formula is easy. ये clear है? Clear है? अच्छा. अगर ये clear है तो बताओ PA क्या होगा? NA upon NA by NA upon N. Got it? Similarly, PB क्या होगा? NB sir. NB by NB over Total organization. PAB क्या होगा? NAB by NB by No. NA. Correct. बट ये क्यों होगा? पहला दो तो obvious है. ये तीनों तो obvious है. Because the event A already But has ये happened. क्यों होगा? B लेने से जब A पहले से ही लिया जाता है. ये जो लास्ट वाला है, हाँ? समझ डेटा का वैल्यू से लास्ट वाला क्यों होगा इसको थोड़ा समझते हैं. ओके, देखो हम लोग जो पिछले दिन जो एग्जांपल किए थे 3 कॉइन टॉस वाला एग्जांपल याद है, जिसमें कितना सारा पॉइंट्स था. हेड से हम लोग स्टार्ट करके हेड टेल हेड फिर हेड टेल हेड ऐसा करके कितना पॉइंट्स था टोटल? 8 पॉइंट्स था, राइट. तो वहां पे अगर मैंने लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, याद करो, उसमें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज टेल. कोई भी एटलीस्ट वन टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑल हेड को एक्सक्लूड हो जाए. उसमें हम लोग एक पॉइंट को एक्सक्लूड किया. All head, sir, all head. ऑल हेड को हम लोग सैंपल स्पेस से एक्सक्लूड करते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी क्या था? 1/7. इंफॉर्मेशन दवा अगर एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो हम लोग उस इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग सैंपल स्पेस को क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं. यहाँ पे भी देखिए इंफॉर्मेशन दे रखा है. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन? दैट A has already occurred. तो हम लोग को सैंपल स्पेस से कौन सा पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा? नॉट हैपनिंग A को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि A हो चुका है, हुआ है. ये श्योर, हम लोग श्योर बोल सकते हैं कि A हुआ है. इसका मतलब जो पॉइंट्स में A नहीं हुआ है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा. जैसे कि हम लोग एक टेल के लिए, एटलीस्ट वन टेल के लिए हम किसको रिमूव किए?
जिसमें कोई भी टेल नहीं है, जैसे ऑल हेड, उसको हम लोग क्या किया था, रिमूव कर दिया था। तो हम लोग का सैंपल स्पेस में क्या होगा, ए नहीं हुआ, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें नीचे क्या रहेगा, ओनली एन ए, क्योंकि ए हुआ है। ओके, तो नीचे जो रहेगा वो एन ए होगा, बट ऊपर क्या होगा, एन ए बी, बिकॉज तुम लोग जो प्रोबेबिलिटी, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जब ए हो चुका है, मतलब जो हम लोग का फेवरेबल इवेंट है, जो इवेंट है उसका फेवरेबल मतलब फेवरेबल टू व्हिच इवेंट, फेवरेबल टू ए एंड बी, तो ऊपर तो हमेशा एन ए बी रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो सिर्फ एन ए रहेगा, क्योंकि जो बाकी पोर्शन है उसको हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि एन ए हो चुका, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली क्या किया यहाँ पे, ये समझ आया कि नहीं, पहले बताओ, किसी को भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से बोलूंगा। देखो यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म सैंपल स्पेस यूज कर रहे हैं, तो ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, तो ठीक है, हेड वाला एग्जांपल से सोचो कि अगर बोल दिया कि कोई भी एक टेल है, तो हम लोग क्या कि अच्छा कोई भी एक टेल है, एटलीस्ट वन टेल, तो उसका फेवरेबल कितना है, एटलीस्ट वन टेल के लिए मेरे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें एक हेड को, तीन हेड को हटाना पड़ेगा, तो 1/7 हो गया, और फिर वो ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, तो ये दिस इज स्पेशल है, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे, so we need to cross off all the points corresponding to is not happening. Okay, हमें निकाल देना, we need to cross off कौन सा पॉइंट पे ए नहीं हुआ, कौन सा पॉइंट है जिसमें ए नहीं हुआ। ये जो फर्स्ट, ये जो रीजन है इसमें क्या है, एन ए एन बी माइनस N एन ए बी, minus NA, N minus NA, ना एन बी माइनस एन ए बी ना, ये जो रीजन है पूरा इसमें तो ए हुआ है ना, एक माइनस तो ए नहीं हुआ किसमें, बाकी जितने भी पॉइंट्स, तो उसको हमें रिमूव कर देना, एन माइनस, तो फिर नीचे कौन सा रहेगा, एन ए रहेगा, ठीक है। और फेवरेबल इवेंट कितना है, हम लोग का डेफिनेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स नीचे रहता है, फेवरेबल ऊपर रहता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हम लोगों को ए नहीं हुआ उसको क्रॉस अप करके कितना होगा, एन ए होगा, और फेवरेबल इवेंट ए एंड बी, तो वो एन ए बी होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब ओके, अब ये जो तीनों फार्मूला है, ए आई, इसको मान लो 2, इसको 3, इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो देखो क्या आता है, सो पी ए डॉट पी ए बी, ये क्या होगा, पी ए क्या है, एन ए बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन ए बी बाई एन ए कट गया, and so what you get is n a b by
n, and that is your PA. So this is how we prove. PA into PAB. PA into PAB is NA by N into NAB by NA. अच्छा NA कैंसिल हो गया and वहाँ पे क्या हो गया NAB by N और NAB by N मतलब क्या है? PAB. P. तो हम लोग क्या प्रूव कर दें PAB equals to PA times PAB. अगर PAB की जगह मैं उल्टा बोलता conversely it is also true. So probability of B and A. So This is P of B. P of BA. This is P of B. P of B. P of PB. B. ठीक है ये भी true. So change the And again, if you do this, you will see that PAB equals to PBA. ये भी ट्रू है। तो सिमिलरली ट्रू है क्योंकि PBA क्या होगा NB by N और PBA क्या होगा NAB by NB और फिर वो कट गया NB अब क्या कट जाएगा NB कट जाएगा और फिर तुम लोग क्या आएगा NAB by NB. NN नहीं इसको करो ये क्या होगा व्हाट इज PB PB is NB by N PBA क्या होगा NAB by NB NBA by NB कर दिया और NBA और NAB सेम है तो P of A to B of C. ठीक है अब हम लोग प्रूव करेंगे अच्छा ये मैं ऊपर इसको ये सब लोग लिख लिया ना अच्छा नेक्स्ट हम लोग जो प्रूव करेंगे that if A and B are independent events independent जैसे कि इंडिपेंडेंट में मतलब कौन सा एग्जांपल दो डाइस दो डाइस कुछ हां एलिस Two points. एलिस पॉइंट्स या फिर दो डाइस क्योंकि उसका रिजल्ट इसके रिजल्ट से बिल्कुल वो अलग होगा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं सो फॉर इंडिपेंडेंस फॉर A and B independent for A and B of each other हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग प्रूव करेंगे चलिए BB equals to basically मतलब PAB जो है PAB मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ both A and B. B ना बोथ ए एंड बी नहीं है ई जब ये पता है जी जब ए पता है ये प्रोबेबिलिटी PB के साथ इक्वल हो जाएगा दोनों इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा दोनों सेम अगर A भी इंडिपेंडेंट है तो ठीक है ये जो प्रोबेबिलिटी है किसके साथ इक्वल होगा PB के साथ फिर हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह क्या लिख देंगे PB लिख देंगे तो जो हम लोग पहला जो हम लोग एग्जांपल से देखे थे एक
व्हाइट और एक ब्लैक बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, which is 10/15 टाइम्स आई को प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इतना तो ठीक है। सर ये सेम P of A into P of B ब्रैकेट A ही हो सकता है। P of B is equal to P of B when event A is occurred। नहीं सेम चीज अगर आप P of A की तरह लेते हैं, नहीं, P of B means P suffix A B, और अगर हम लोग P suffix B A करेंगे तो P of A होगा। हाँ ठीक है, तो इसको हम so we try to prove this using again an example। A and B independent of each other, that means A and B is not like they have no common factor। हाँ they are, That's the point। हाँ जैसे कि मान लो एक फॉर एग्जांपल दो कॉइन टॉस, एलिस एक कॉइन टॉस कर रहा है, बॉब एक कॉइन टॉस कर रहा है, या फिर दो डाइस थ्रो कर रहे हैं, एलिस एक डाइस थ्रो कर रहा है, बॉब एक डाइस थ्रो कर रहा है। क्या एलिस का रिजल्ट बॉब के रिजल्ट से डिपेंडेंट है? नहीं। तो ए इवेंट जो है, बी इवेंट जो है, दो अलग अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट? ठीक, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट, तो ऐसे हम लोग यही एग्जांपल लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, जो डाइस वाला एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सो वी ट्राई टू प्रूफ। तो डाइस वाला जो इवेंट था उसमें एलिस और बॉब दोनों के पास डाइस था, दोनों थ्रो कर रहे थे, उसका सैंपल स्पेस कैसा था? So 1 so 2 dice are students are tossed by Alice okay, so sample space टू डाइस मतलब एक एलिस के पास है, एक बॉब के पास है। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस कैसा होगा? 1, इसको लिखते हैं 1, 2 up to 1/6। Remember this is being recorded, huh? Sir, this will go up to 6,6 and 6 row and 6 column। 2, 1, 2, 2 Okay, try to write down. Write down all the sample points. Then 6, 1, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. यही है सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है? 36। तो n क्या है मेरा? अब मान लो मैं बताऊंगा, मैं ये बोला कि सपोज इवेंट A इज, सो इवेंट A मतलब जो पहले हुआ, इवेंट B मतलब जो बाद में हुआ। मान लो इवेंट A को मान लो एलिस का मान लेते हैं,
और इवेंट बी क्योंकि एलिस ए स्टार्ट विद ए, तो मान लो कि इवेंट ए एलिस का जो डाइस है उसका रिजल्ट इवेंट ए है और बॉब का जो डाइस है उसका रिजल्ट है इवेंट बी। नाउ सपोज इवेंट ए is having 1 and 5, okay, in first dice मान लो एलिस का है, मैंने बोल दिया एलिस सर दो बार थ्रो किया था। हैं, दो बार थ्रो। हाँ दो बार नहीं नहीं एक थ्रो करना है, एक डाइस दो डाइस है, एक एलिस। दो डाइस Simultaneous. साइमल्टेनियस करे चाहे बाद में करे, बट वो लोग इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। डाइस दो लोग का। एलिस एक बार थ्रो किया, बॉब एक बार बॉब एक बार थ्रो, तो एलिस का थ्रो में 1 and 5 हम लोग इसको इवेंट ए लेंगे एंड इवेंट बी इज हैविंग, मान लेते हैं ये कोई कुछ भी ले सकते हो, मैं एक पर्टिकुलर ले रहा हूँ 1 3 4 5 इन ये समझ में आया कि नहीं? तो इवेंट है 1 है कि फर्स्ट डाइस में क्या आएगा 1 और 5, इवेंट बी है कि सेकंड डाइस में क्या आएगा 1 3 4 5। सर मतलब ये चांसेस है आने का, इसमें से कोई भी एक आ सकता है, ऐसा है? मतलब नहीं ये आया आया है 1 और 5 फेवरेबल ये आ इवेंट। ही चुका है। 1 और 5 फेवरेबल है of course। एलिस का में आ चुका है। यानी हाँ। ऐसा है कि एलिस में एक और 5 आ गया और बॉब में 1 3 4 5 आ गया। हाँ, इसका टोटल फेवरेबल इवेंट्स काउंट करना है। तो देखो जो पहला इवेंट है उसमें क्या है, फर्स्ट डाइस का जो फर्स्ट डाइस है उसमें क्या आएगा 1 और 5। तो हम सैंपल स्पेस देख के बताओ कौन सा पॉइंट है जो पहला में 1 है और 5 है, कौन सा पॉइंट? 1 5 ये तो ऊपर का ऊपर का जो पूरा है देखो उसमें सबसे पहले क्या है 1 और 5 और ये देखो इसमें क्या है, तो फर्स्ट इवेंट जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या क्या होगा, 1 ये वाला टोटल होगा, ठीक है, और कौन सा होगा 5 का उसका ये होगा, राइट। तो ये दोनों मेरा हो गया इवेंट ए, तो ये भी ए बोल दिया मैंने, इसको भी मैंने। सो ए ने कैलकुलेट कर लेते, तो ए ने क्या होगा 12 136 ए ने बोला मैंने, ए ने कितना होगा 12। अब इवेंट बी को देखते हैं जिसमें सेकंड डाइस में क्या है 1 3 4 5। तो सेकंड डाइस में 1 3 4 5 देखो फर्स्ट One. कॉलम, इसमें सब में 1 आया, थर्ड कॉलम, तो पहला जो होगा ये फर्स्ट पूरा कॉलम। ये अलग कलर से बदलता अच्छा होगा। और फिर 3 4 और 5, इसका मतलब ये होगा, है ना। ये हो गया तुम्हारा बी, अब ये मेरा हो गया B। तो एन बी क्या होगा 3 18 और देन यहाँ पे कितना 6 सो टोटल 20। इतना समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। पी ए क्या होगा 12 बाई, जोर से बोलो 36। पी बी क्या होगा 24 136 ये क्या होगा? अच्छा, व्हाट इज एन ए बी? एन ए बी मतलब 12 प्लस दोनों में हुआ ओवरलैपिंग, अच्छा दोनों दोनों इवेंट है, इसमें मतलब 8 कहाँ
कहाँ कहाँ ओवरलैप हुआ। तो ओवरलैपिंग मतलब क्या है? ओवरलैपिंग कौन सा हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे? फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 1 आया, फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 3 आया, फर्स्ट में 1 4, फर्स्ट में 1 5, ये भी ले लिए। फिर 5 के लिए 5 1 ओके 8 हो, बिकॉज़ ये ओवरलैपिंग कौन सा है? ये दोनों तो है ही, और फिर यहाँ पे ये तीनों है और फिर ये तीनों, तो 8 है ना? क्लियर है ये? यस सर। देखो काउंट करो खुद ही, 1 1, ठीक है? फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, फर्स्ट में 1, सेकंड 5, ठीक है? ये क्या, ये सब इवेंट क्या है? A एंड B। फिर दूसरा क्या होगा? 5 1 5 1 5 3 5 4 5, ठीक है? तो NAB कितना होगा? तो PAB क्या होगा? बोलो। 8/36 ठीक है? अब कैलकुलेट करते हैं कि PAB क्या होगा? PAB मतलब कि प्रोबेबिलिटी B का कितना है, बट हमें पता है कि A ऑलरेडी हो गया। हो चुका है, तो वो कितना होगा? B upon B of A और 5 इंक्लूड करके रखेंगे फर्स्ट वाला A n of A upon n of B ये वाला ऐड भी कर देंगे फर्स्ट वाला पोजीशन NAB बाय N। हम लोग को फार्मूला पता है ना इसका, हम लोग तो प्रूफ कर चुके उस फार्मूला तो क्या है? NAB बाय NA, क्योंकि हमें पता है कि A हो चुका है। देखो इसको समझो, A हो चुका है मतलब क्या है? फर्स्ट में 1 होगा या फिर 5 होगा, बाकी चीज नहीं होगा। NAB मतलब 8/12। फर्स्ट में 1 हुआ कितना? 6 ना, फर्स्ट में 1 हुआ कितना है? टोटल 6 है ना 4। फर्स्ट में 5 हुआ कितना है? 4 जब भी 4 4 8। 8। सर 8/12। तो बी से मिला सकते ये कितना होगा? 8 बाय, ठीक है? ये कितना होगा? 8 देखो PB कितना था मेरा? 3/3। PAB कितना है? equal तो ऐसे तुम लोग कुछ भी यहाँ पे, मैंने एक एग्जाम पर्टिकुलर 1 5 और 1 3 4 5 लिया है, ऐसे तुम लोग कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हो और तुम खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि ये नंबर क्या होगा। और हमेशा देखना हर बार PAB मस्ट बी इक्वल टू PB होगा हमेशा। हाँ, तो जैसे कि मान लो तुमने 1 5 की जगह ले 5 6 ले लो, या फिर और ले लो 4 5 6 और यहाँ पे लो 1 6 3, तुम खुद कर सकते हो। इक्वल टू PB का है। हाँ, वो हमेशा PAB जितना भी तुम करोगे, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है। हाँ, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है इसलिए हो रहा है। अगर डिपेंडेंट हो तो डिपेंडेंट केस में नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन ही यही है। इंडिपेंडेंट इवेंट का A B का इंडिपेंडेंट, इसको तुम एक डेफिनेशन से ले सकते हो। इसको यू कैन टेक दिस एज अ डेफिनेशन कि A B इंडिपेंडेंट कब होगा? जब PB इक्वल्स टू PAB हो, तब A और B दोनों इवेंट का हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है? अच्छा, ये तो हम लोग फार्मूला से किए। और
सकती है, लेकिन अगर फॉर्मूला हम लोग यूज ना करके करते तो बताओ तो पी ए बी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? पी ए बी मतलब जैसे ए हो चुका है, बी होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो उसमें हम P of AB in by P of A. फॉर्मूला लग गया फिर से। हाँ, पी ऑफ ए बी, देखो पी ऑफ ए बी सॉरी एन ए बी तो होगा ही आर, लेकिन नीचे 12 क्यों आया? एन ऑफ कोर्स फॉर्मूला से, बट मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 और बाकी कितना पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जो काउंट में नहीं होगा? 1,2 सर तले 1,2 सर 12 12 24 6 6 12 निकालने के बाद बाकी सब 12 तो बात सर 24 काउंट नहीं होगा ना सर? अरे 12 हाँ 24 काउंट नहीं होगा। कौन सा 24 काउंट नहीं होगा? सर जिसमें सर बी वाला जो ये वाला ए वाला काउंट नहीं होगा। ए वाला सर मतलब पहला 1 और नीचे जो 5 फिक्स है वो दो को हटा के बाकी जितने 1,2 1,6 और देखो ये काउंट नहीं होगा, हाँ है ना? हाँ नहीं ये काउंट होगा, काउंट नहीं हो रहा है, होगा, हो डी रहा है। नहीं डी के हिसाब से देखना है ना बी फेवरेबल है, बी के अंदर से लेना कंफ्यूजन भी हो गया। नहीं बी ए बी तो 8 है ना, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12 क्यों है? क्योंकि जो इसमें ये 1 और 5 जो पहला नहीं है उसको हमेशा सबको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो सैंपल पॉइंट का पहला जो नंबर है वो 1 और 5 नहीं है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप काउंट करो कि कौन कितना सैंपल पॉइंट्स है जिसका पहला जो नंबर है वो 1 और 5 छोड़ के बाकी है 24। काउंट करो 2 3 4 and 6 देखो 1 2 3 4 ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अब आया समझ में? क्यों हम लोग 24 पॉइंट को हम लोग we are eliminating 24 points because those points the first number is not 1 and 5, that's why हम लोग ठीक है, समझ आया? अब ये सेम प्रॉब्लम करना घर में जाके एक होमवर्क ले लो, इसको प्रूव करना है। इसमें इवेंट ए को तुम लोग मान लो 5 6 एंड 4 4 5 6 और इवेंट बी को मान लो 1 एंड 4। इवेंट ए मतलब जो पहला नंबर है और इवेंट बी मतलब दूसरा, ठीक है? तो इसको करके ये पर्टिकुलर चॉइस करके एन ए एन बी निकाल लो, पी ए पी बी निकाल लो, फिर देखो कि पी ए बी इक्वल्स टू पी बी हो रहा है कि नहीं। 4 5 6 और फिर 1, ठीक है? तो अगर ये हो गया, अगर तुम लोग कन्विंस हो, इफ यू आर कन्विंस दैट PAB इक्वल्स टू PB, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं इस थ्योरम में? फाइनली वी कैन राइट दैट PAB इक्वल्स टू B. So you can finally write that PAB is basically PA times PB. Again for A, B independent. Okay, ये याद रखना, A B को इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तभी ये। अब एक एग्जांपल करते हैं, 3 कॉइन टॉस वाला एग्जांपल करते हैं। 3 कॉइन टॉस याद है?
3 कॉइन टॉस वाला एग्जांपल करते हैं। अच्छा अब बताओ 3 कॉइन टॉस जो इंडिपेंडेंट है कि 3 लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं, अलग-अलग है। तो अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑल आर हेड्स, 1 हाउ इट इज 1 अरे 1 भी फ्रैक्शन 1 by 1 by 8 1 by 8 1 by 2 होल so how कैसे कर लो 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into क्योंकि इसको ऐसे रीड करो कि फर्स्ट कॉइन जो है उसमें हेड, सेकंड कॉइन जो है उसमें हेड एंड थर्ड कॉइन में हेड एंड हेड। और यानी हम लोग क्या करेंगे हाफ इनटू हाफ, क्योंकि फर्स्ट कॉइन में हाफ आने हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड में भी हाफ, तो हाफ इनटू हाफ, ठीक है। और सैंपल स्पेस में भी देखो 1 by 8 1% चूना लगेगा अगर हेड पे सैंपल। ओके गुड। नाउ ये हो गया एक थ्योरम। अब दूसरा थ्योरम हम लोग का ये है, तो इसमें हम लोग कह रहे हैं ए एंड बी, ओके। अब ये होगा आइदर ए और बी और बोथ, ओके। यानी ए बी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। 1 by 2 plus 1 by 2 तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसको हम ऐसे लिखते हैं कि सो पी ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। पी ए प्लस बी मतलब प्रोबेबिलिटी दैट either A or B or both, okay। तो इसको हम लोग फिर से एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो दिस इज योर A, दिस इज B, सेम डायग्राम एक्चुअली जो पहला हम लोग लिए। तो PAB को हम इस डायग्राम से बताओ, PAB को हम कैसे लिख सकते हैं, PA प्लस B को आइदर A और B और बोथ, मतलब क्या है PA प्लस B, तो ये हो गया मेरा टोटल सैंपल्स, टोटल जो पॉइंट्स वो मेरा आ गया, है ना। PA लेकिन A और B होने बीच में जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी इसमें से इंक्लूड हो गया, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आया। ये किसका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B एंड B नहीं, ये था A और B और बोथ, या तो ए या बी या दोनों। माइनस पी भी इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं PA और PB को ऐड कर रहा हूँ तो मैं डबल काउंटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि PA में इस पॉइंट इंक्लूडेड है, PB में भी इस पॉइंट को इंक्लूड है, तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर रहा, तो इसलिए मैंने माइनस PA भी किया। ओके। और अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इन दोनों में अगर कोई ओवरलैप नहीं हुआ, PAB 0 तो PA भी क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में PA प्लस भी क्या होगा, PA plus CB। तो ये दोनों भी बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मान लो दो स्टूडेंट, सो टू स्टूडेंट्स आर वर्किंग सेपरेटली ऑन सेम प्रॉब्लम। सेपरेटली बोला का मतलब क्या है,
independent और mutually exclusive है दोनों. Okay. So two students are working on a problem separately. The first student has probability. First student has probability half of solving it, and second student has probability 3/4 of solving it. What is the probability that at least one of them solves it? Question ये है कि what is the probability that at least one of them हाँ तो what is first, so use the definition, is the theorem. What is the probability that first student solve this 1/2? What is the probability that second student solves it 3/4? But then what is the probability that first student and second student solves it? Why 0? Both events are independent but they are not mutually exclusive. ठीक है? There is a probability that A and B solves it. है ना? Mutually exclusive ना? What is PAB? PAB is PA times उसको 3/8 कर देंगे 3/4 1/4 ना So what is PAB? नहीं चल आसमान में देख ले से 1/2 into पेपर से करना पड़ता आस्ते PA times P. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाफ प्लस 3/4 माइनस minus 3/8 1/4 25% चलो लगेगा तो 40 है ठीक है? इसका आंसर क्या होगा 7/8. देखो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, इसको तुम लोग खुद एनालाइज करो. दोनों सॉल्व करें उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा कि कोई भी एक सॉल्व करे उसका ज्यादा होगा? दोनों सॉल्व करें उसका इंडिविजुअल होगा एक साल में दोनों होने का प्रोबेबिलिटी कम है, है ना? अलग-अलग करें तो दोनों ही सॉल्व करें इसका प्रोबेबिलिटी कम, और कोई भी एक सॉल्व करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. देखो वही है, कोई भी एक सॉल्व करे उसका प्रोबेबिलिटी मतलब एटलीस्ट वन, कोई भी नहीं मतलब एटलीस्ट वन सॉल्व करे उसका प्रोबेबिलिटी 7/8, बट दोनों ही सॉल्व करे उसका प्रोबेबिलिटी कम है. ठीक है? ठीक है, तो आज इतना ही है ना. अगले क्लास में हम लोग वेडनेसडे वेडनेसडे
वेंसडे हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट काउंट करने का मेथड क्या है, सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और उसका जो मेथड है कैसे काउंटिंग करते हैं। प्रोबेबिलिटी कितने क्लास में खत्म हो जाएगा सर? प्रोबेबिलिटी आई थिंक 5 से 6 क्लास लगेंगे। तो आज मेरा सेकंड है, और चार थर्ड में हम लोग काउंटिंग सीखेंगे और रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट्स ऑफ गॉसियन और बाइनोमियल। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें 3 दिन, तो 6 लेक्चर, होपफुली 6 दो लेक्चर। कंप्यूटर और चार का सर लेक्चर लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग जो जो तुम लोगों को, क्योंकि मैं पहले जल्दी से लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग जो जो प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं हुआ वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन बिटवीन तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहना कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं उसको, ठीक है।